بھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 6 جولائی 2020 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہوں گے۔ 6 جولائی 2020 کو 11ویں اور 12ویں جماعت کے جو ایگزامس ہیں وہ ہوں گے، اور دونوں ایگزامس جو 9ویں اور 10ویں کے ہیں اور 11ویں اور 12ویں کے ہیں یہ دوپہر کی شفٹ میں ہوں گے۔ دوپہر کی شفٹ میں ہوں گے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات 6 جولائی 2020 سے شروع ہوں گے، اور جو نتائج ہیں 12ویں جماعت کے وہ 15 سپٹمبر 2020 کو جاری کر دیے جائیں گے۔ جو ریزلٹس ہیں کلاس 12 کے 12ویں جماعت کے وہ 15 سپٹمبر 2020 کو جاری ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہم کر رہے ہیں نئی، اس لیے کہ چونکہ ہمارا کیلنڈر کافی ڈسٹرب ہوا ہے، کہ جو 11ویں اور 12ویں جماعت کا سیشن ہے جو کالج میں جو تعلیمی سال شروع ہوگا وہ 1 اگست 2020 سے شروع ہوگا۔ 1 اگست 2020 سے 11ویں اور 12ویں جماعت کی کلاسز کالجز میں شروع ہوں گی، اور جو ایڈمیشن ہے 11ویں جماعت کے وہ 15 جولائی سے شروع ہو جائیں گے۔ 1 اگست سے 11ویں اور 12ویں کی جماعت کی کلاسیں شروع ہوں گی، اور اس سے پہلے جو داخلے ہیں 11ویں جماعت کے وہ 15 جولائی سے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز اگر آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو شاید لگے گی کہ جو ریزلٹس ہیں 10ویں جماعت کے وہ 15 اگست کو آنے ہیں، لیکن ایڈمیشن ہم پہلے کر رہے ہیں 15 جولائی کو، اور یہ ایڈمیشن جو 9ویں جماعت کا ان کا رزلٹ ہوگا اس کے بہاف پہ پروویژنل ہم کر دیں گے۔ پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گا 11ویں جماعت میں میٹرک کے بچوں کا، لیکن چونکہ اس کا 10ویں جماعت کا رزلٹ نہیں آیا ہوگا تو وہ پروویژنل ایڈمیشن ہوگا اس کی 9ویں جماعت کی جو مارک شیٹ ہوگی اس کی بنیاد پر، اور جب 15 اگست کو رزلٹ آ جائے گا تو جو لوگ کوالیفائی کر جائیں گے، جو پاس ہو جائیں گے وہ کیری آن کریں گے، جو اس میں فیل ہو جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ڈیسیشنز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر بہت زیادہ مجھے بھی شکایت آتی ہیں، اور ظاہر آپ تک بھی آتی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں، کہ اکثر والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسکول بند ہیں تو ہم فیسز کیوں دیں بچوں کی فیس ہم کیوں دیں اسکولوں کو۔ تو اس میں ذرا وضاحت کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 برس پہلے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز یہ چلے، اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام اسکول چھٹیوں کی ایڈوانس فیس لے لیا کرتے تھے۔ تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا، معزز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اسکول جو ہے بچوں سے ایڈوانس فیس نہیں لے گا، جو بھی فیس دینی ہوگی وہ منتھلی بیسس پہ ہوگی۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اسکولوں کی جب چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو اسکولوں میں فیس ادا کی جاتی ہے، اس لیے کہ جس اسکول میں آپ کے ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی بچوں کو فیس نہیں دینی تو پھر ہمیں شاید یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو ان اسکولوں میں ملازمین ان کو تنخواہیں بھی نہ دی جائے، اور یہ ایک فیصلہ بڑا نامناسب ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق تمام والدین اپنے بچوں کی فیس ماہانہ ادا کریں۔ کوئی ایڈوانس فیس جو ہوتی ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کی ہوتی ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم نے جو پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ کے نمائندے بیٹھے تھے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ منتھلی فیس جو ہے وہ لیں اور ایڈوانس فیس آپ ان سے نہ لیں۔ یہ جو فیصلے تھے وہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی عرض کر دوں کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے جو رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان سب کا، کہ انہوں نے حکومت سندھ کی درخواست پر جو مذہبی اجتماعات ہوتے تھے ان سب کو انہوں نے ریڈیوس کیا ہے، کم کیا ہے، اور حکومت سندھ کا
हर तरह से साथ देने का उन्होंने फ़ैसला किया है। उन्होंने वीडियो मैसेजेस जारी किए हैं, उन्होंने अपनी मसाजिद, अपने चर्चेज़, अपने मंदिरों से ऐलानात किए हैं और वो मुस्तकिल अपने लोगों को ये गुजारिश करेंगे। हुकूमत सिंध जो एडवाइज़री जारी कर रही है, जो शहरियों को हिफाजती इक़दाम करने की गुजारिश कर रही है, उस पर अमल किया जाए ताकि ये जो एक ख़तरनाक वबा दुनिया में फैली है हम इसका सामना कर सकें। सही साहब, ये बताएं कि जब भी आप कोई फैसले करते हैं, खुसूसन महकमा तालीम सिंध हुकूमत कोई फैसले करती है तो निजी स्कूल वाले हर वक्त उसकी वायलेशन करते हैं। आपने स्कूल बंद करने की बात की, उन्होंने स्कूल खोल दिए। आपने फीसें न लेने की बात की, वो दरवाजे पे, अब तो वैन वाले के जरिए दरवाजे पे आ जाते हैं। वैन वाले भी कह रहे हैं कि हमें 4 महीने के पैसे दिए जाए, चलो वो मुंह दे देंगे उसको। लेकिन अभी जो आप इम्तिहानात को आगे करने की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे पहले निजी स्कूल वालों को आपने एतमाद में लिया है, मुतफिक है? और दूसरा ये कि आपके इस फैसले पर निजी स्कूल वाले कितना अमल दरामद करेंगे? अगर न करेंगे तो आप उनके खिलाफ क्या करेंगे? पहले क्या किया है? देखें, जब हुकूमत ने फ़ैसला किया तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो स्टीयरिंग कमेटी में जिनकी नुमाइंदगी है, उनको एतमाद में लेकर फ़ैसला किया। लेकिन हमें जहाँ जहाँ से ये शिकायत आई कि स्कूल खुले हुए हैं, हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और ऐसे ऐसे स्कूल भी बंद कराए जो कभी बंद होते ही नहीं थे, जिन्होंने सोचा भी नहीं था। मैं आपको अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे इदारे भी बंद हुए जो कभी बंद नहीं होते थे, तो हमने करवाए। और आइंदा भी अगर शिकायत आएगी तो हम उनके ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई वो करेंगे और जो फ़ैसला हुकूमत का है उस पर अमल दरामद करवाएंगे। और ख़ास तौर पर ये फ़ैसले जिन हालात में हो रहे हैं, वो हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि लोग हमसे ताउन करें और इस बात का इंतज़ार ना करें कि हम ज़बरदस्ती जाकर उस फैसले पर अमल दरामद करें। नामुनासिब बात है। हालात की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक फ़ीस की बात है, मैंने बताया आपको कि हमारी स्टीयरिंग कमेटी में प्राइवेट स्कूल्स की तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे और उनके साथ सामने ये बात हुई है और उनको एतमाद में लेकर हमने ये बात की है। कोई भी स्कूल अगर एडवांस फीस लेगा, मांगेगा, उसकी आप शिकायत करें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा भाई, ये बता दें कि ये जो आपने शेड्यूल पूरा बनाया है, इस वक्त वबा जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होने के चांसेस अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। तो ये क्या इसमें फिर कोई और तब्दीली भी मजीद आप करेंगे, क्या करेंगे? ये क्या गारंटी है कि ये जून तक हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें, गारंटी तो मैं उस कमरे से बाहर निकलूंगा, पता नहीं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इस बात की भी नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने प्लान तो करनी है चीज़ें ना, और हमने इसीलिए तातीलात पहले कर ली ताकि हम चीज़ों को प्लान कर सकें। अगर हम 2 हफ्ते की करते तो शायद ये प्लान हम नहीं कर सकते थे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये जितनी भी हमने प्लानिंग की है, जो कैलेंडर बनाया है, ये कंडीशनल है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जून में हालात कैसे होंगे। हमें उम्मीद है कि हालात शायद बेहतर हो जाएंगे, इसलिए कि हम जो इक़दाम कर रहे हैं उसमें ठीक है। फ़िलहाल जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है और उसकी वजह यह है कि हम बड़ा एग्रेसिवली लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनके टेस्ट ले रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो नंबर बढ़ेगा। लेकिन एक मरतबा जब ये सारे लोग जो बैरून ममालिक से आ रहे हैं या जो लोकल ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिशन लोगों की हो रही है, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नंबर्स में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ तमाम शहरियों से, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जिनकी स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई हैं, उनके वालिदैन से, कि खुदा के लिए अगर हमने बच्चों की छुट्टियाँ की हैं तो उसका सबब ये नहीं था कि हम उनको सिर्फ स्कूलों से निकालना चाह रहे थे। सबब ये है कि हम उनकी सेहत के मुतल्लिक, उनकी हेल्थ के मुतल्लिक ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम ये चाहते हैं कि ये खुदा न खास्ता ये वायरस बच्चों तक मुंतकिल ना हो। इसलिए आप ख़ुद भी और बच्चों को भी पाबंद करें कि आप घरों में बैठें, इस पूरे अरसे में घरों से बाहर मत निकलें। मैंने अभी बताया है, ये आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि 1 जून से हम नया तालीमी साल शुरू कर रहे हैं। इस 1 जून से लेकर 15 जून तक तमाम जमातों के स्कूलों में इम्तिहानात होंगे और 15 जून तक वो उसका रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। जतई साहब कह रहे थे जी, एक मिनट पहले कह रहे थे जी।
किए गए, बकायदे इम्तिहान। देखें, अगर कुछ स्कूलों की अपनी पॉलिसीज़ पहले से हैं और उनकी पॉलिसीज़ पहले से अनाउंस हैं, वो मुझे पता है कुछ स्कूलों में होता है, उसको हम देख लेंगे। अगर वो कानून के मुताबिक चीज़ें हैं तो ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं वो हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसको वायलेट करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम उनको पूछ लेंगे। जैसे आपने कहा कि 9th और मैट्रिक में प्रोविंशियल लेवल पर 9th के फर्स्ट ईयर में कर दिए जाएंगे एडमिशन। 10वीं जमात के जो बच्चे हैं उनका 11वीं जमात में जो दाखिला है वो 9वीं जमात की मार्कशीट की बुनियाद पे हो जाएगा। एक मिनट, सवाल उसका नहीं, सवाल नहीं किया। फेल होते हैं, इनके को क्वालिफाई नहीं करते, उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि जो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो भी तो फीस पे कर चुके होंगे। देखें, फीस उसकी नहीं है, लेकिन ये कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस वक्त हमें गैर मामूली किस्म के हालात का सामना है। हमारे पास ये ऑप्शन भी था कि हम ये जो दाखिले हैं ये 1 महीना और आगे कर देते, हम कर सकते थे कि रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद करें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वक्त अपना बचाएं और मैक्सिमम जो टाइम बच्चों की पढ़ाई का हो सकता है उसको इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चा 9th में जिसका रिज़ल्ट अच्छा होगा उसमें 99% बच्चे 10वीं में पास हो जाते हैं। तो फरमाइएगा कि सबसे पहले तो फरमाइएगा, कुछ देर पहले खबर चली है कि प्रमोट करने का, कैटेगरी में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि प्रमोट करने का फैसला किया है, क्या वाकई ऐसा कोई फैसला हुआ है? नहीं हुआ। दूसरा सवाल, ये कैम्ब्रिज जो सिस्टम के अंदर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके साथ कोई आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि उन इम्तिहानों के कैलेंडर अभी तक चेंज नहीं हुए और लाखों बच्चे जो है वो कैम्ब्रिज सिस्टम में भी पढ़ते हैं। आप उनका देखें, मैं 2 मरतबा ये कह चुका हूँ कि 1 जून से 15 जून तक तमाम जमातों के इम्तिहानात होंगे और उसके बाद फिर 9वीं 10वीं के होंगे। अब जब मैं ये बार बार कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन करें आप, ठीक नहीं। एक दूसरी बात उनकी बड़ी अहम है। देखें, A लेवल और O लेवल के जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बड़ा एक इशू है और उनके वालिदैन भी, और वो बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशान हैं। हम इस पर चुप करके नहीं बैठे, मुस्तकिल मेरा अपना भी राब्ता है, वफाकी हुकूमत से भी राब्ता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टियों के हवाले से कोई एक फ़ैसला हो जाए। मैंने शफकत महमूद साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है, उनसे गुजारिश की है कि आप कोई मीटिंग बुला लें, जो वो शायद 2-4 दिन में बुला लेंगे। हम तो बड़ी जल्दी में हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, लेकिन बहरहाल उनके पास शायद और मसरूफियात होंगी, तो वो मीटिंग करेंगे 2-4 दिन में। हमारी कोशिश है कि अगर पूरे पाकिस्तान में स्कूल की तातीलात फ़िक्स हो जाएं, तय हो जाएं और 30 जून तक तमाम स्कूल बंद हो जाएं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसमें भी बच्चों के लिए कोई एक फ़ैसला करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं, यूरोप इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासिर है, वहाँ भी तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं और बरतानिया भी तालीमी इदारे मुझे नहीं पता कब बंद हो जाएंगे, कितने अरसे के लिए बंद होंगे, वहाँ भी सूरत हाल ठीक नहीं है। तो गालिब इम्कान इस बात का है कि कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स भी रीशेड्यूल हो जाएंगे। मैं अभी हतमी तौर पर डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम इसमें मुस्तकिल राब्ते में, लेकिन उसका हल हम कोई ना कोई निकाल लेंगे। वो मोकिलण दौरान बैन हटंदो, हाणे वो मोकिलण जॾहिं एडवांस थी वियूं आहिनि त हाणे छा उहो बैन हुन तां लिफ्ट थी वियो, उन्हनि जी बदिलियूं मुक़ररियूं स्टाफ जूं जेके रीशफलिंग थींदी उहो तव्हां हाणे कंदा हिन दौरान? देखें, जो बैन है वो नॉन टीचिंग स्टाफ पे तो है नहीं, वो टीचिंग स्टाफ पे बैन है और हमारी तरफ से नहीं है, कैबिनेट की तरफ से बैन है। और वो बैन कैबिनेट ने लगाया था जो तालीमी साल है उसके ख़ात्मे तक। तो इस वक्त तालीमी साल ख़त्म नहीं हो रहा, तालीमी साल हमारा एक्सटेंड हो गया आगे। तो जब तक ये तालीमी साल ख़त्म नहीं होता तब तक कैबिनेट के पास ये चीज़ रिव्यू के लिए नहीं जाएगी और फ़िलहाल ये पाबंदी रहेगी। अच्छा सही भाई, ये भी बता दें कि आपके पास क्या इतलात है, मज़ीद कितने लोग आने हैं और कितने पहुंच चुके हैं, ये कन्फ्यूजन कब ख़त्म होगा, आप क्या इतलात है? देखें, कन्फ्यूजन नहीं है, मेरा ख्याल है कि जितना डेटा हमारे पास है शायद किसी सूबे के पास नहीं होगा, शायद वफाकी हुकूमत के पास भी ना हो, क्योंकि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं। जो अफराद सखर पहुँचने थे ताफ्तान से, उनकी तादाद शायद कोई 830-35 के करीब है जिन अफराद ने वहाँ पहुँचना है। कोई 300 के करीब अफराद वहाँ पहुँच चुके हैं
اور مزید یا بھی پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، مختلف فیزز میں وہ وہاں پر آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کے سیمپلز ہم نے لے لیے ہیں، کچھ کے ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی ہیں، وہ آپ کے علم میں ہوگا، اور کچھ کی رپورٹس ابھی آج آئیں گی، پھر کچھ شام میں آئیں گی، پھر کل کچھ صبح آئیں گی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کچھ دنوں تک۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے جو مختلف ممالک میں ہیں، اور جو ایران میں پاکستانی ہیں ان کی تعداد ہمارے مطابق تقریباً 900 سے زائد ہے، اور جو ایف آئی اے کے پاس ڈیٹا تھا وہ شاید 1200 کچھ بتا رہے تھے۔ تو اس کو ہم ریکنسائل کر لیں گے، اس کو ہم چیک کر لیں گے۔ چیف منسٹر صاحب نے کل یہ بھی آفر کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت جہاز جو ہیں وہ چارٹر کر لے، ان تمام جہازوں کے اخراجات صوبائی حکومت بیئر کرے گی۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ جو مسافر ہم سکھر میں لے کر آئے ہیں وہ تافتان کے بارڈر پر 14 دن تک ان کو کوارنٹائن میں رکھا گیا تھا، اور اگر ہم بڑا کیجولی اس کو لیتے